بلاول بھٹو کا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کی نامزدگی کا اعلان. فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا اور سردار سلیم حیدر خان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں یقین ہے دونوں گورنرز اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کریں گے. گورنرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی. 18 مہینے سے کہہ رہا ہوں بات چیت کے لیے تیار ہوں. بات مخالفین سے ہی ہوتی ہے. کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو. کہا 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے. نئی تاریخ رقم. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ. قمری مشن آئی کیوب قمر چین کے ہینان اسپیس سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا. چانگ A6 مشن 5 روز کا سفر مکمل کر کے چاند کے قریب پہنچے گا. پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا. 7 کلو گرام وزنی آئی کیوب 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوں گے. قسم کھا کر کہتا ہوں آپ چور ہو. آپ نے گندم اسکینڈل میں پیسے کھائے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے تلخ کلامی. انوار اللہ کاکڑ نے کہا کیا مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ فارم 47 پر بات کی تو آپ اور نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. حنیف عباسی نے کہا میں پروگرام میں جو بھی گفتگو کی وہ بالکل درست تھی. ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی نجی ہوٹل میں ہوئی. ایک ہفتے میں پنجاب حکومت نے گندم نہیں خریدی تو پٹریاں اور قومی شاہراہیں بلاک کر دیں گے. کسان اتحاد نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا. چیئرمین خالد حسین باٹ نے کہا جب تک گندم نہیں خریدی سب کچھ جام رہے گا. پنجاب حکومت اور پولیس نے کسانوں کو لاٹھی چارج اور تشدد کیا. جواب دیتے تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. گندم درآمد پر ARY نیوز کی خبر پر وزیر اعظم کا ایکشن. فروری کے بعد گندم کیسے درآمد ہوئی؟ وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا. وافر گندم ہونے کے باوجود گندم کی درآمد جاری رکھنے اور LC کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت. سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں کمیٹی 4 روز میں تحقیقات کرے گی. ادارہ شماریات کا کہنا ہے موجودہ دور حکومت میں 6,91,000 جبکہ نگراں دور حکومت میں 27,58,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. اکتوبر 2023 کو اپروول ہوئی اور 1 نومبر کو کراچی میں پہلا جہاز وہ آ کے لنگر انداز ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ وہ جہاز یوکرین سے روانہ نہیں, وہ جہاز کراچی کے باہر کھڑا تھا. اس کو صرف اپروول کا انتظار تھا اینڈ دے نیو اٹ. ان کو پتا تھا کہ اپروول ہونے والی ہے. سارا پاکستان یوکرین کی گندم کھاتا رہا اور گورنمنٹ کے سٹاکس بچتے رہ گئے. پورا پاکستان یوکرین کی گندم کھاتا رہا اور گھر کی گندم پڑی رہی. PTI رہنما اون عباس کی سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا 22 اکتوبر کو گندم درآمد کی منظوری ہوئی. 1 نومبر کو پہلا جہاز بھی پہنچ گیا. 5 نومبر کو دوسرا اور تیسرا جہاز بھی پہنچ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جہاز تیار کھڑے تھے اور منظوری کی دیر تھی. واضح نظر آ رہا ہے کہ گندم کی درآمد میں بڑی کمائی کی گئی ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا گندم درآمد کی جاتی ہے اور وہ ہر بار زیادہ ہو جاتی ہے جس سے کسان مارا جاتا ہے. حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے فنڈز نہیں ہوتے تو پھر تھرڈ پارٹی آتی ہے. حکومت بینکوں کے پاس جاتی ہے اور وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بحران صرف گندم کا نہیں چینی کا بھی پیدا ہوتا ہے. ہم ایک ہی سیزن میں چینی پہلے درآمد کرتے پھر برآمد کرتے ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود گندم کی درآمد اسکینڈل کے اہم کردار. ملک میں وافر گندم کے باوجود جس وقت گندم درآمد کی گئی اس وقت محمد محمود سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کے اہم عہدے پر تعینات تھے. گندم کی امپورٹ سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر محمد محمود کا کہنا تھا یہ DPP کا اپنا فیصلہ تھا کیونکہ گندم کی امپورٹ پر پابندی نہیں تھی. DPP سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وزارت خزانہ, کامرس یا کوئی اور ادارہ؟ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر DPP کیسے گندم امپورٹ کر سکتا ہے؟ سابق سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی محمد محمود نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے. 2015 میں محمد محمود کو نندی پور پلانٹ میں بے ضابطگیوں پر MD کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. 2021 میں انہیں بطور کمشنر راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں گرفتار بھی کیا گیا.
मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। वज़ीर खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी, कहा गंदम के बहरान के जिम्मेदार गंदम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी, किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं गंदम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का रुकन है, वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई का ड्रामा पीटीआई को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरों को सजा मिलेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तस्दीक की गई। मशरकी रिवायात का तमस्खर उड़ाया गया। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। मई का ताल्लुक खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ, इन लोगों के सारे सीसीटीवी फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। बानी पीटीआई 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके, पहले और अब भी यही मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे सीसीटीवी फुटेजेस लाएं और जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें 9 मई का फायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं। बानी पीटीआई ने कहा है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे पास कोई पैगाम आया न हमने किसी को कोई पैगाम दिया है। बानी पीटीआई ने 3 जमातों के सिवा सबसे बात करने की इजाजत दी है। हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो नुकात लेकर आए, अल-कादिर ट्रस्ट केस की कोई बुनियाद नहीं है। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जजेस पार्लिमानी कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फारूक नाइक, अनुशा रहमान, मोहसिन अजीज कमेटी रुकन मुकर्रर। हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी भी शामिल। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आईनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में इत्तफाक किया गया जजेस की तकर्रुरी के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मुआवने खुसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना में रद्दोबदल मामूल का हिस्सा है, ये वज़ीर आला का स्वाबदीदी इख्तियार है। ब्यामिर में बस खाई में जा गिरी, 20 मुसाफिर जाम बहक, 21 जख्मी। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए बस मोड़ काटते हुए खाई में गिर गई। बस हादसे के बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों का एवैक्यूएशन ऑपरेशन। शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से गिलगित CMH पहुंचाया। पुलिस, रेस्क्यू 1122, GB स्काउट्स और दीगर हुक्काम की कोशिशों को बुरुए कार लाया गया। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आजादी सहाफत के दिन खुजदार में धमाका, प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। बाइक सवार ने मौलाना सिद्दीक की चलती गाड़ी पर मगनातीसी बम चिपकाया, जिसके बाद धमाका हो गया। पुलिस ने जख्मी अस्पताल पहुंचाए, जेरे इलाज 2 जख्मी भाइयों ने दम तोड़ दिया। मौलाना सिद्दीक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार में धमाके की मजम्मत। इजहार राय पर कतगन जमहूरी मुआशरों की रूह के खिलाफ है। मीडिया पर कतगन लगाने वालों को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का इजहार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बयान में कहा रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से प्रोग्राम्स रुकवाना और नशरियात बंद कराने का सामना रहा। सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए गैर जरूरी दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतादिद पाबंदियों का सामना रहा। सदर, वजीर आजम, इदारे और सियासी जमातें इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें।
welcome people from all over the world, of any ethnicity, from countries all over the world, to ask whatever questions they want to ask us. Unfortunately, one of the sad features of social media is that people make all sorts of inappropriate comments and threats and intimidation. I see that on social media. I'm sure you do too. It doesn't make it acceptable in any way. अमेरिका में सहाफियों को धमकियां किसी तौर कबूल नहीं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, कोई भी सवाल हो हम खुशामदीद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफी को जवाब, सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए अमेरिकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज गजा में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफ़ती इदारे ने कहा, गजा में सहाफ़ियों की हिम्मत और आज़ादी इज़हार के अज़्म की पुरज़ोर हिमायत करते हैं। ये अवार्ड ख़तरनाक हालात का सामना करने वाले सहाफ़ियों की हिम्मत को ख़िराज तहसीन पेश करता है। इसराइल की वहशियाना बमबारी में अब तक 100 से ज़ायद सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गजा में कत्लेआम के खिलाफ अमरीकी तलबा की तहरीक जारी। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज में पुलिस का क्रैकडाउन। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले 60 के करीब तलबा को गिरफ्तार कर लिया। खैमे उखाड़ दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का एहतजाजी कैंप पर धावा। आंसू गैस की शेलिंग। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़प। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटीज से 2000 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया जा चुका। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी इसराइल मुखालिफ कैंप लग गया है। हमास कमांडर अबू उबैदा अमरीकी तलबा का भी हीरो बन गया। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने अमरीका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन के मुजस्मे को अबू उबैदा का रूप दे दिया। मुजस्मे को फलस्तीनी रुमाल से ढांपकर परचम भी पहना दिया। मुजाहरों के दौरान तलबा फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की तरह रुमाल से मुंह छुपा लेते हैं। इसराइली बमबारी में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,622 हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में तबाही की मिसाल नहीं मिलती। गजा की बहाली में 80 साल लग सकते हैं। शहर की तामीर नौ में $40 बिलियन लागत आएगी। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ्द मिस्र भेज दिया। तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। लाहौर पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम को 6 लाख में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टारगेट मिला था। मुलजिम फैजान सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को कत्ल कर चुका था। सोशल मीडिया ग्रुप में सब इंस्पेक्टर की तस्वीर डालकर इजाजत ली। पुलिस का कहना है, मुलजिम ने सोशल मीडिया ग्रुप में कहा टारगेट 2 फूल वाला है। मुलजिम फैजान को ग्रुप से इजाजत मिली तो सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। मुलजिम फैजान का अफगानिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप से राब्ता था। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हुजोंग मिंग से मुलाकात। नेवल चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का दूसरा मरहला जारी। बच्चों को 6 मई तक पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस के दरमियान 5वां और आखिरी T20। गर्ल्स इन ग्रीन का मेहमान टीम को जीत के लिए 135 रन का हदफ। सिद्रा अमीन की शानदार बैटिंग, 48 रन बनाए। मुनीबा के 25 और आयशा ने 22 रन का हिस्सा डाला। आई फ्लेचर की 3 और जोसेफ की 2 विकेटें। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीसीबी ने दौरे जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम रवां साल के आखिर में प्रोटियास के देश जाएगी। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज 10, वनडे सीरीज 17 और टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी।
آسٹریلیا نے ٹیسٹ میں بھارت سے پہلی پوزیشن چھین لی. ICC کی سالانہ ٹیم رینکنگ جاری. بھارت کی ون ڈے اور T20 میں پہلی پوزیشن برقرار. پاکستان ٹیسٹ میں چھٹے اور ون ڈے میں چوتھے نمبر پر موجود. ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کو T20 رینکنگ میں بھی دھچکا. 2 درجے تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلا گیا. یوروپا لیگ کے سنسنی خیز سیمی فائنلز مارسی اور اٹلانٹنا کے درمیان فرسٹ لیگ کا مقابلہ برابر ہو گیا. مقررہ وقت میں دونوں ٹیمز ایک ایک گول کر سکی. دوسرے مقابلے میں لیورکوسن نے روما کو 2-0 سے شکست دی. فائنلسٹ کا فیصلہ دوسری لیگ کے میچز میں ہوگا.